A very good evening, 7th class students. Hope you all are fit and fine. So let's move towards your exercise 1.3. Previously, we have discussed about exercise 1.2, and now today I'm going to discuss with you some properties of multiplication and first two questions of exercise 1.3. So here are some properties or the main facts for the multiplication of integers. And multiplication of integers, you can see, are of two types. Okay, so first one is multiplication of a positive and a negative integer. Means यहाँ पे आप जब multiply करते हो किन्हीं भी two integers को, if there is one positive integer and other one is negative integer, the answer will be in negative condition. Means यहाँ पे negative इस तरह से arrange करेंगे. And here I'm putting some example. If the value of a is 2 and b is equal to 4, so by putting these terms in this expression, or you can say by putting the value of a and b in this expression, the answer will be in negative, that is 8. Secondly, multiplication of two negative integers. When you multiply two negative integers with each other, then answer will be in positive. So if you take the value of a is 2 and the value of b is 4, or negative 2 -4, then answer will be +8. माइनस एंड माइनस क्या हो जाएगा आपका, प्लस हो जाएगा. ओके, सो नेक्स्ट वन इज प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स. फर्स्ट प्रॉपर्टी इज क्लोजर अंडर मल्टीप्लिकेशन, एज प्रीवियसली वी हैव डिस्कस्ड in the case of addition and subtraction. So there is also closure under multiplication property. Okay, so this is related to a cross b, multiplication of any two types of numbers. Secondly, commutative under multiplication. Commutative means when you rearrange the numbers, then the left hand side is equal to right hand side. Means a cross b, if you arrange or if you put b firstly and secondly a, then the answer will be equal. Third one is multiplication by zero. When you multiply any number to the zero, the answer will be 0. Fourth one is multiplicative identity. A cross 1 is equal to 1 cross a is equal to a. Means when you multiply 1, identity means 1, when you multiply 1 with any number, the answer will be number itself. You can see this property. This is the general form for this property. Okay, next one is associativity for multiplication. A cross b bracket close and cross c. When you multiply these two numbers, or you can see when you put first two numbers inside the bracket and third one is outside the number, the answer will be you can take outside the first number and second and third inside the bracket. You can see यहाँ पे जो है, यहाँ पे फर्स्ट टू नंबर्स ब्रैकेट में लिए है, यहाँ पे जो है लास्ट टू नंबर्स जो है ब्रैकेट में लिए एंड यहाँ पे फर्स्ट जो बाहर के, यहाँ पे थर्ड बाहर किया है. बोथ आर सेम थिंग. मीन्स दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज associativity for multiplication. Sixth one is distributive property under addition. Means a cross b plus c, so answer will be a cross b plus a cross c. means एक ए जो है आपका पहले बी के साथ आएगा, फिर जो आपका ए है वो सी के साथ आएगा. ठीक है, ये चीज़ आएगी आपकी. देन डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन वाला जो है ये आएगा आपका. ए क्रॉस बी माइनस सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी. सिमिलर टू दी एडिशन प्रॉपर्टी एज वी हैव डिस्कस्ड इन ऑनलाइन क्लास. ओके, सो जस्ट राइट डाउन एज इट इज एंड यू हैव टू kept in mind these properties. Now move to the third exercise 1.3, that is question number first. Find each of the following products, that is 3 cross minus of 1 and is equal to minus of 3. 3 ones are 3 and यहाँ पे मैंने अभी आपको टीच करवाया, that is ए क्रॉस मीन्स एक नंबर अगर आपका पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, देन आंसर क्या आएगा आपका, नेगेटिव नंबर आएगा. सो यहाँ पे जो है माइनस ऑफ 3 डायरेक्ट मैंने लिख दिया है. देन माइनस ऑफ 1 इंटू 225 इज इक्वल टू 225 वन ज़ा 225 विद नेगेटिव साइन, बिकॉज यहाँ पे एक नेगेटिव साइन है, एक यहाँ पे पॉजिटिव नंबर है. थर्ड वन इज माइनस ऑफ 21 इंटू माइनस ऑफ 30. टू नेगेटिव इंटीजर्स हैं तो इसका आंसर क्या आता है आपका, पॉजिटिव में आता है. बाय यूजिंग दिस फैक्ट, सो यहाँ पे पॉजिटिव का आएगा और यू हैव टू जस्ट मल्टीप्लाई दीज टू नंबर्स. सो यू कैन ईजिली मल्टीप्लाई दीज टू नंबर्स एज हम जैसा करते हैं. ठीक है, देन एफ पार्ट यहाँ पे जो है यहाँ पे जो डी पार्ट है ये भी आपका सेम है. टू नेगेटिव इंटीजर्स हैं, सो यहाँ पे हमने जो है वो पॉजिटिव में आंसर आएगा. और यहाँ पे एक टाइप से आप ये भी बोल सकते हैं कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यहाँ पे यूज़ हुई है.
सो नेक्स्ट जो है अभी मैंने आपको रीड करवाया मल्टीप्लिकेशन बाय ज़ीरो. इफ़ यू मल्टीप्लाई एनी नंबर विद ज़ीरो देन आंसर विल बी ज़ीरो. सो यहाँ पे भी ज़ीरो किया हुआ है मल्टीप्लाई. सो किसी भी नंबर के साथ ज़ीरो करते हैं तो आंसर क्या आता है हमारे पास ज़ीरो. रेस्ट ऑफ द पार्ट्स जो आप खुद ट्राई करेंगे, जैसा कि मैंने आपको ऑनलाइन क्लास में बता दिया आपको, ठीक है, कि किस तरह से हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे. सो यू ऑल हैव टू ट्राई दीज क्वेश्चंस. नेक्स्ट वन इज़ सेकेंड क्वेश्चन, दैट इज़ वेरीफाई द फॉलोइंग. मीन्स अभी हमने जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी स्टडी की है, दिस इज़ ए इंटू बी प्लस सी. मीन्स ये है आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. एंड यहाँ पे जो आंसर आएगा वो है आपका ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी, ये होता है आपका, ठीक है. तो यही टर्म है आपके यहाँ पे. सो 18 एज इट इज़ मल्टीप्लाई बाय 7 एज इट इज़ प्लस माइनस 3 एज इट इज़. ओके, 18 इंटू 7 126 आ जाएगा, प्लस 18 3 ज़ा 54 विद नेगेटिव साइन. यहाँ पे मैं नोट डाउन कर लिया. 18 इंटू 7 माइनस 4 इज 7. सो 4 एंड इज इक्वल टू 126 minus of 54. 72 is equal to 72. Left hand side is equal to right hand side, this one. सेकेंडली यहाँ पे भी आपका ए क्रॉस बी प्लस सी है यहाँ पे आपका, देन इज इक्वल टू ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी आएगा आपका, ठीक है. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है. पहले अपने -21 को -4 के साथ लिखना है, प्लस करके -21 को आपने 6 के साथ लिखना है, ये चीज़ है. देन -21 एंड -4 एज इट इज़ प्लस -6 इज इक्वल टू 2 नेगेटिव इंटीजर है, इनको मल्टीप्लाई करना है. 21 4 ज़ा 84 आएगा, माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस, एंड यहाँ पे प्लस साइन है. एंड 21 इंटू 6 क्या है आपका, यहाँ पे आपने मल्टीप्लाई करना है इनको, ठीक है. देन यहाँ पे आएगा आपका -21 इंटू -10 इज इक्वल टू 84 एज इट इज़ प्लस 126, बिकॉज यहाँ पे जो है माइनस एंड माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाता है. 6 + 4 कितना हो जाएंगे 10 विद नेगेटिव साइन. व्हेन यू मल्टीप्लाई 2 नेगेटिव इंटीजर योर आंसर विल बी पॉजिटिव, दैट इज 210 एंड इज इक्वल टू दिस 84 प्लस 126. सो 210 आपका आ जाएगा यहाँ पे इनको ऐड करने पे. सो यू कैन सी दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. So this is all about your exercise 1.3, that is question number first and second. So you have to write and revise these first two questions and submit your homework on time. Thank you students. Have a good day.